Today we'll again start with a new chapter, chapter number 3, Landforms and Life. You're doing class 6 NCRT. Okay. Free from the burden of human beings, may the earth with many heights, slopes, and great plains, bearing plants, endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. It is written in Atharva Veda, Bhumi Sukta, hymn to the earth. I'll again read it. Free from the burden of human beings, may the earth with many heights, slopes, and great plains, bearing plants, endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. Okay, आगे चलते हैं. Introduction. Humans, like most mammals, live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. Suppose that you are traveling by road from the region known as Chota Nagpur in Jharkhand, reach Prayagraj in Uttar Pradesh, and go to Almora in Uttarakhand. On the way, you will see very different landscapes. In fact, you will encounter three major landforms which we will now explore. ओके तो आप ये स्कूल में आप कर लीजिएगा. एल्टीट्यूड का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट की बात होती है. द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल. सी लेवल से सपोज दिस हिल, तो ये सी लेवल से कितना ऊपर है, ये जो हाइट है ना, इट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड. The height of an object above sea level. Example: the altitude of a mountain, the altitude of a bird or plane in a flight, the altitude of a satellite. मतलब this is sea level and bird is flying here. So this is called altitude. So it is the height of an object above sea level. Example: altitude of a mountain, altitude of a bird or a plane in flight, the altitude of a satellite. Okay. Landform is a physical feature on the surface or planet Earth. A landform takes shape over millions of years and have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into three categories. Mountains. Landforms हम divide करते हैं three categories में. Mountains में, plateaus में और plains में. Mountains, प्लेटूज थोड़ा उससे उसका जाल्टी थोड़ा कम, फिर प्लेन्स तो पूरा सीधे जो हम बोलते हैं गंगा डेल्टा प्लेन ना, गंगा डेल्टा प्लेन पढ़ते हैं हम. प्लेन्स अब बिल्कुल प्लेन, ठीक है. प्लेटूज थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा एल्टीट्यूड होता है उसमें, और फिर माउंटेन्स हमने पढ़ा. अब इन तीन तरीके के ये जो फीचर्स है, इसको जो डिवाइड किया गया लैंडफॉर्म को, इसको हम पढ़ते हैं. द लैंडफॉर्म्स, एक मिनट इसको मैं यूज़ कर देती हूँ. These landforms have different climates and are home to variety of flora and fauna. अब अलग अलग माउंटेन्स में हमें अलग फ्लोरा फाना मिलेगा, प्लेटूज पे अलग मिलेगा, प्लेन्स पे अलग मिलेगा. अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें. Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kind of landforms varies throughout the world. Mountains. Next topic है mountains. Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. ये higher है ना. They can be recognized by a broad base, steep slopes. Slopes एकदम steep होते हैं और जो बेस है वो ब्रॉड होता है ना, ऐसे ऐसे दिखते हैं ना माउंटेन्स, ऐसे ऐसे. एंड नैरो समिट. और समिट कैसे होता है? नैरो. टॉप समिट मीन्स टॉप, तो कैसे नैरो सा. डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. कुछ स्नो से कवर्ड होते हैं. एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर. ठीक है, रिवर को फीड करता है वो जो स्नो होता है, वो मेल्ट हो जाता है लोअर एल्टीट्यूड्स पे. हाई एल्टीट्यूड्स पर स्नो में नेवर मेल्ट, वहाँ पे स्नो कभी मेल्ट ही नहीं करता, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड. अदर हाई लैंड्स विद द लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स. हिल्स किसे कहते हैं? थोड़े लोअर हाइट पे होते हैं माउंटेन से, थोड़े स्टीप कम होते हैं, मतलब ऐसे नहीं होते हिल्स, थोड़े ऐसे, और राउंडेड टॉप्स होती है हिल्स की. तो दिस इज़ अ हिल, दिस इज़ अ राउंडेड टॉप्स, दिस इज़ अ हिल. ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं, माउंटेन्स दिखाया ना, ये समिट कैसे टॉप भी नैरो सा है. माउंट एवरेस्ट इज़ अ माउंटेन ना, तो ये सब समिट
जो है, जो पीक है वो एकदम नैरो सा है। तो यहाँ पे देखो स्नो है ही, हमेशा है। यहाँ पर जो स्नो होता है वो मेल्ट होकर रिवर्स को फीड करता है और ये रिवर्स फिर प्लेन्स में आती है। दिस ड्राइंग इलस्ट्रेट्स 3 लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड, 2 ऑफ देम स्नो कैप्ड। यहाँ हमने देखा स्नो कैप्ड है। अ प्लेटू ऑन द लेफ्ट, प्लेटू ऑन द लेफ्ट, दिस इज अ प्लेटू, है ना, प्लेन्स से ऊपर थोड़ा लेकिन माउंटेन से कम, ठीक है। प्लेटू एंड अ प्लेन इन द फोरग्राउंड विद अ रिवर एमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, एक रिवर आ रही है माउंटेन से, मेल्ट जो हो रहा है स्नो वो रिवर, और ये सी हो गया शायद, सी या ओशन, उसमें मिल जाता है पानी रिवर का। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, इट इज गिवन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, जो वाटर है एटमॉस्फेयर से वो ग्राउंड पर पहुंचता है किसी भी फॉर्म में, बीट रेन, बीट स्नो, हेल, बारिश के तरीके से, स्नो के तरीके से, ओले, है ना, उसके तरीके से। मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन अगर पूछे आपसे कि व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन बेटा, टेल मी, यू हैव रेड इन योर स्कूल, है ना, तो आप प्रेसिपिटेशन बताना कि जो भी पानी एटमॉस्फेयर से आता है जो ग्राउंड पर पहुंचता है किसी भी फॉर्म में, बीट रेन, बीट स्नो एंड बीट हेल, तो उसको ये जो है ये प्रेसिपिटेशन इसी को कहते हैं, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड। और इसके फॉर्म्स जो बताए हैं प्रेसिपिटेशन के, कैसे बारिश से, स्नो से, और ये सब तरीके से पानी रीचेज द ग्राउंड। ओके, थिंक अबाउट इट, क्या दिया हुआ हम देखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज स्नो, स्नो क्या है, बर्फ़ क्या है। अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। यहाँ पर तो बर्फ़ होती ही है ना, पर लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रेसिपिटेशन कैसे देखते हैं, बारिश या ओले, है ना। तो बट एट हायर एल्टीट्यूड्स पे इट इज़ कोल्ड, ना बहुत ठंड होती है। स्नो विल फॉल कवरिंग द लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल वाइट ब्लैंकेट। स्नो एंड हेल स्टोन्स आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। स्नो और हेल स्टोन क्या है, प्रेसिपिटेशन है पानी का, लेकिन सॉलिड स्टेट में होता है। रेन में तो लिक्विड होता है, रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, पर स्नो और हेल स्टोन्स लिक्विड नहीं होते ना, दे आर इन सॉलिड स्टेट। देखिए यहाँ पे माउंटेन्स की पिक्चर थी, माउंट एवरेस्ट दिया है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एकोनकागुआ, माउंट किलिमांजारो, माउंट ब्लांक, ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट अनामुदी, ये ना अलग अलग जगह पर माउंटेन्स है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कौन सी कंट्री में कौन सा है। अगर माउंट एवरेस्ट तो हमें पता ही है सबको, हाँ, तो माउंट एवरेस्ट तो हमें सबको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है। माउंट एकोनकागुआ, दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक, राइट, एशिया में हाईएस्ट है ये माउंटेन, एशिया में है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट है, सी लेवल के ऊपर है ना, सी लेवल के ऊपर अगर देखें तो ये हाईएस्ट है, सी लेवल से हाईएस्ट माउंटेन है ये। इसका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एलिवेशन देखें तो मतलब कितना इसकी हाइट है, दैट इज़ 8,849 मीटर से बोला जाता है कि अभी भी इट इज़ ग्रोइंग और बड़ा होता जा रहा है। ओके, सो तो ये नेपाल चाइना के बॉर्डर पे आई गेस, जो मुझे अभी याद आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये माउंट एवरेस्ट एक्जैक्टली कहाँ है। माउंट एकोनकागुआ इज़ अनदर वेरी माउंटेन विच इज़ एट पीक, है ना, काफ़ी इसका पीक है, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है ये, एल्टीट्यूड पे है। तो इट इज़ इन माउंट एकोनकागुआ बेसिकली जो इंडीज़ माउंटेन रेंज है, अगर आपको ये पता है कि नहीं, अभी तो शायद क्लास 6 में है, हाँ जी, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा कि आप लोकेट देख लीजिएगा माउंट एकोनकागुआ, मैं भी रिमेम्बर कर पाई कि अर्जेंटीना में होगा ये, और इंडीज़ माउंटेन रेंज है, आप वो चेक कर लीजिएगा, इंडीज़ माउंटेन रेंज, ठीक है। ऐसी माउंट ब्लैंक और माउंट किलिमांजारो भी है, आप ये सब देख लीजिएगा एक बार। अनामुदीज इन इंडिया, आई गेस केरला, तमिलनाडु, ऐसे की।
ओके नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। केरला में पिछले 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आप ये सब देख लीजिएगा कौन से कहाँ पर है। माउंट अनामुदी इज इन केरला। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस सच एज द हिमालयाज इन एशिया। एशिया में क्या है, हिमालयाज है। एल्प्स का है यूरोप में, एल्प्स माउंटेन्स आर इन यूरोप। मैं अभी यहाँ ऊपर आपको इंडीज़ की बात करी थी, इंडीज साउथ अमेरिका, तो ये पूरी चेन है, माउंटेन रेंज है पूरी ना इंडीज़। तो ये अर्जेंटीना, अदर चिली, पेरू, ये ना कंट्रीज है साउथ अमेरिका की, ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे सपोज अगर अर्जेंटीना है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो यहाँ पर ये कंट्री है चिली, और यहाँ पर पेरू। तो यहाँ पे ना ये माउंटेन रेंज है, इसको इंडीज़ कहते हैं साउथ अमेरिका में। तो यहीं पे हम एकोनकागुआ माउंटेन देखते हैं, लेकिन एक बार आप फिर से सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो दिस इज अ स्केच शोइंग द रिलेटिव हाइट ऑफ 6 माउंटेन द वर्ल्ड। हाइट बता रहे हैं कि ना किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। ये एक माउंटेन है, ये कौन सा माउंटेन है, आई गेस अनामुदी, हाँ जी अनामुदी माउंटेन है ये। फिर ये अलग अलग बताया कि किसकी हाइट कितनी है, इसकी से 1000 मीटर तक की है इसकी हाइट। हाँ, 2000 मीटर तक जा रही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा, सपोज 2200 तक जा रही है ना। नेक्स्ट ये कौन सा माउंटेन है देख लीजिएगा एक बार, दिस इज़ माउंट ब्लांक। तो ठीक है, ये इसकी हाइट यहाँ तक है अप्रॉक्सीमेटली 46 या 44 ऐसे ना, ऊपर थोड़ा जा रहा है लेकिन 47 तक भी जा सकता है ये। तो इसकी हाइट यहाँ से नीचे, तो ये ऐसे देख लीजिएगा। तो सबसे हाईएस्ट तो हमें पता ही है, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट, हमने इसके पढ़ा भी 849 मीटर, और इट इज़ स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। फिगर 3.2 शोज पिक्चर्स ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिगर 3 गिव अ विजुअल, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, हाँ यहाँ पे मेंशन है, देखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें ना। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत चाइना एंड नेपाल, इसको शेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पर है ये माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत में, चाइना में, नेपाल में, इसको बॉर्डर पे होगा ये माउंटेन। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ पे है, नेपाल और सिक्किम के बीच में। अब द 2 हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयन रेंज, ये दोनों हाईएस्ट पीक्स हैं हिमालयन रेंज में, माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कंचनजंगा। माउंट एकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका, येस वी हैव चेक्ड इट, हमने ऊपर पढ़ा अर्जेंटीना में है। माउंट एकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडीज़। तो इंडीज़ माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ, दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक इन द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडीज़। माउंट किलिमांजारो इज ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका में है। माउंट किलिमांजारो इज इन ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका इज़ अ कंट्री हियर, सपोज ये अफ्रीका है, ऐसा कुछ है ना अफ्रीका। तो माउंट किलिमांजारो इज ईस्टर्न अफ्रीका में है, तो ये दिस इज अफ्रीका। तो ईस्ट साइड में माउंट किलिमांजारो यहाँ पे कहीं होना चाहिए, तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, तो वो ईस्टर्न अफ्रीका इज़ एन इट इज़ एन बेसिकली आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज, ये कोई किसी पार्ट रेंज का पार्ट नहीं है। माउंट ब्लांक इन वेस्टर्न यूरोप, ये यूरोप में है, ऊपर अफ्रीका के ऊपर है ना, यूरोप यहाँ पे यूरोप है। तो इस वेस्टर्न यूरोप में इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। तो माउंट ब्लांक जो है, माउंट ब्लांक है, ये हाईएस्ट है एल्प्स का। एल्प्स आर इन यूरोप में, एल्प्स माउंट रेंज कहाँ पे, यूरोप में। अनामुदी यस केरला, राइट, केरला में है। तो अनामुदी केरला में है, इसको अनाई पीक कहते हैं, एंड इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। एक मिनट, हाँ जी, तो अनामुदी जो केरला में है और इसको अनाई पीक भी कहते हैं, ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। तो हमने अनामुदी चेक कर लिया, केरला में अनाई पीक किसे कहते हैं और हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया का। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट बेसिकली टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन्स। माउंटेन फॉरेस्ट वो होते हैं जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो ग्रो करते हैं माउंटेन, जो माउंटेन वाले रीजन में जो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं ना, ट्री जो है ना, उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। मॉस क्या होता है,
द स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स, एक स्मॉल ग्रीन प्लांट है जिसके कोई फूल नहीं होते हैं और उसके कोई ट्रू रूट्स नहीं है, ऑफन स्प्रेडिंग इन कुशन लाइक कवर, ये कुशन लाइक कवर की तरह फैल जाते हैं, दे स्प्रेड, दे ग्रीन कलर के होते हैं ना, इससे फैल जाते हैं ये। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मॉस क्या होता है, मॉस होता है अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग लाइक अ कुशन लाइक कवर। लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन बेसिकली अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक्स वॉल्स और ट्रीज, ये क्या करते हैं, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है और ये क्लिंग करते हैं रॉक्स पर, वॉल्स पे और ट्री पर, ये लाइकन्स है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स, जो माउंटेन्स बहुत टॉल है और शार्प पीक्स है, लाइक द हिमालयाज, हिमालयाज आर द टॉम विद टॉल एंड शार्प पीक्स, दे आर रिलेटिवली यंग, इन्हें यंग माउंटेन्स कहते हैं, विच मीन दैट दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री, अभी रिसेंटली दे हैव बीन फॉर्म्ड इन द अर्थ हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री को देखें अर्थ की हिस्ट्री तो ये रिसेंटली बने हैं, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ऐसा भी नहीं कि कुछ अभी रिसेंटली, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए इनको बने हुए। Shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli range are much older, Aravalli range जो है ना दिल्ली में, दिल्ली से इधर राजस्थान, ये रेंज है पूरी अरावली रेंज, तो ये क्या बेसिकली हरियाणा तक आई जाती है, तो ये अरावली रेंज ही ओल्डर है, जो अरावली रेंज है ये ओल्डर है, एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, और इसमें देखा जा रहा है कि इरोजन हो रहा है, मतलब हट रहा है चीज़ ऊपर से, इट इज़ ब्रेकिंग डाउन है ना, और समटाइम्स एज विद द हिमालयाज अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे, हिमालयस के केस में भी अपलिफ्टमेंट भी होता है और इरोजन भी कंटिन्यूसली होता रहता है। यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेस एंड देयर कॉजेज, लेट अस जस्ट से दैट देयर आर सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट, हाँ जी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो कुछ माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालयाज वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं हाइट में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन एनवायरनमेंट। Mountain slopes are often covered with a type of forest called montane forest, where conifer trees such as pines, firs, spruce, deodar are common. These conifer trees grow tall and cone-shaped with thin, pointed leaves. At higher altitude, the trees give way to grasses, mosses, and lichens. और ऊपर क्या हो जाता है, ग्रो करते हैं grasses, mosses, and lichens. Okay, here are two verses from a long poem by Kalidas. Kalidas कौन थे? Kalidas was a ही वॉज अ पोएट, और कौन सी सेंचुरी की बात है, कालिदास आई गेस 5th century, ही वॉज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या हम पढ़ेंगे आगे चल के, उस टाइम पे ही वॉज एन पोएट, ठीक है, ही पोएट और प्ले राइट, मतलब प्ले राइट हमने सुना होगा, शकुंतला है ना, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा था, ही वॉज अ प्ले राइट जो प्लेज लिखते हैं, वॉज एन ऑथर, पोएट, ये सब उन्होंने लिखा था। 5th century की बात है, 5th century AD में ये गुप्ता टाइम के पे इंडिया में थे। संस्कृत, और संस्कृत में बेसिकली लिखते थे, ये पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामाज लिखते थे। ओके, हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। ओके, हियर आर टू वर्सेस फ्रॉम अ लॉन्ग पोएम बाय कालिदास हु लिव्ड एट लीस्ट 1500 years ago, बता रहे 1500 years ago वो थे, एंड इज ऑफन कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ग्रेटेस्ट पोएट माना जाता है इनको। द पोएम कुमार संभव, कुमार बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू द हिमालय, जो कुमार संभव उन्होंने पोएम लिखी है वो हिमालयाज़ के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने पहले। द सिम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है। इन द नॉर्थ राइजेज हिमालयाज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड who measures the earth and stretches from the western to the eastern oceans. From it the wind comes down, carrying spray wet from descending Ganga, shaking the deodar trees, opening the peacock's tail feathers and cooling the mountain people after they hunt deer. तो उन्होंने इस पोएम में इसका जिक्र किया, हिमालयाज़ कहाँ से नॉर्थ में है, वहाँ पे लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स है, लिविंग लाइक अ लिविंग गॉड, अर्थ को मेजर करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा हो कि वहाँ से गंगा फिर डेसेंड करती है, देवदार ट्रीज़ है, पिकॉक्स टेल वेदर्स, कूलिंग माउंटेन पीपल, ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिखी है। डिस्कस द वर्ड्स एंड फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास, ठीक है, आप क्लास में करेंगे स्कूल में। ओके, ये कुछ दिया गया है यहाँ पे, एनिमल्स और फ्लोरा फोना की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कैसे मिलते होंगे। पेरीग्रीन फैल्कन, हिमालयन तहर लाइक अ गोट, राइट, माउंटेन हेयर, हेयर लाइक अ रैबिट ना, उसका
टाइप होता है ना. ईगल, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स लाइक अ कैट की फैमिली से ही होगा ये. याक, ओके, याक वहाँ पे तिब्बत, लद्दाख, यहाँ पे तो इसका मिल्क होता है, इसका वूल भी होता है. ओके, दिस इज़ आइबेक्स. आइबेक्स इज ऑल्सो लाइक अ गोट की फैमिली कोई. ग्रे फॉक्स, ये सारे माउंटेन पे एनिमल्स, फ्लोरा फोना वहाँ के हैं. लेपर्ड वी नो. ब्लैक बियर. ओके, अ फ्यू माउंटेन एनिमल्स. ये एनिमल्स की बात की. कुछ वहाँ पे क्या क्या मिलते हैं. falcons, hare, eagle, the lynx, this yak, this ibex, then grey fox, leopard, and black bear. Deep forests, flowing rivers, lakes, grasslands, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, peregrine falcon, Canadian lynx, snow leopard, ibex, Himalayan hare, the mountain hare, the yak, the grey fox, and black bear. ये सभी वहाँ पर होते हैं. Don't miss out. Okay, Ganga is the Indian name of the largest river originating in the Himalayas. Ganga we all know. In English, Ganges is also used. English में से Ganges कहते हैं. Nearly 2500 kilometers long. कितनी long है गंगा river? It is 2500 kilometer long. The river has numerous tributaries. बहुत सारी tributaries है. That is other river joining it. Tributary का मतलब क्या होता है कि जो other river जो join करती है. Mean this is गंगा. तो यहाँ पे अलग अलग इसको river join करती है. तो these rivers जो होते हैं इसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. लाइक अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, गंगा को ज्वाइन करती है राम गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब नदियाँ यहाँ से भी ज्वाइन. हमने एक और रिवर है यमुना में पढ़ते कि यमुना गंगा को ज्वाइन करती है. फिर यहाँ से भी कुछ नदियाँ है. सोन रिवर है एक, वो इसको ज्वाइन करती है. बिहार में आई गेस बिहार में जगह है आ रहा आई गेस. हाँ, तो फिर यहाँ पे ऐसे है. तो और भी रिवर जो इसको ज्वाइन करती है. फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्रा कम्स. फिर ये बांग्लादेश में एंटर है ना, द रिवर एंटर्स. तो ऐसे हम इसको आगे पढ़ेंगे भी और अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस की बुक्स में. ओके, सो दैट इज अदर रिवर ज्वाइनिंग इट. सम ऑफ देम लाइक द यमुना एंड द घाघरा ऑल्सो ऑरिजिनेट हिमालय. यमुना मैंने बताया कि यमुना ज्वाइन करती है, तो यमुना भी कहाँ पर हिमालयस में ही ऑरिजिनेट होती है. घाघरा ऑल्सो originated Himalayas. Others like the Son, yes, I mentioned the Son river. So it is written here. The Son river or the Son originating from the Vindhya range से south of the Ganga plain. ये विंध्या रेंज से originate होती है साउथ में गंगा प्लेन के. तो ये भी इसको ज्वाइन करती है. ओके, हम नेक्स्ट ये टेरेन पढ़ लेते हैं. टेरेन क्या होता है? टेरेन इज अ पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स. टेरेन क्या है? पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ द लैंड. ओके, टेरेन क्या है? पीस ऑफ स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इट्स फिजिकल फीचर्स. में फिजिकल फीचर्स क्या है उसके बाद उसको हम टेरेन कहते हैं. ठीक है. टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया. टेरेस फार्मिंग होती है ना, टेरेस बना लिया जाता है जैसे कि इरोजन बेसिकली उसको रोकने के लिए ना, कि पानी फ्लो ना कर जाए. तो ऐसे हम देखते हैं कि अगर आप किसी नॉर्थ इंडिया वाली जगह पे गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा, जहाँ पे हिल एरियाज़ भी होते हैं वहाँ पे भी होता है ऐसे टेरेसेस बना देते हैं ना, स्लोप्स टाइप बना देते हैं. ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. लाइफ इन द माउंटेन्स. थैंक यू फॉर watching and listening the lecture.